Bonjour Ravinder, bonjour Adi. Bonjour, Bonjour. Comment ça va? ça va bien. Bien, Toi? merci. À toi? Je vais bien aussi, merci. Adi, ça va? Ta santé, ça va? Ça va. D'accord, ta santé, ça va? Ta santé, ça va? What can that mean, Adi, if I ask you this question? Ta santé, ça va? I don't know if you can. Okay. मॉर्निंग कैसी है तुम्हारी? सुबह कैसी है? Okay, so santé means health. Health, Oh, all well. Okay. Voilà, santé. Voilà. So, ta santé, ça va? Oui? yes. Bon. Très bien, bonne santé. Je suis en bonne santé. I am in good health. Je suis en bonne santé. Voilà. Ok, très bien. Ici, verbe. Bonjour, verbe. Comment ça va? Bonjour, sir. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi. Merci beaucoup. So, just asking this little question. Ta santé, ça va? If I were to ask to someone about his or her health, I would say, ta santé, ça va? This person responds and says, oui, oui, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé means I'm in good health. D'accord? Je suis en bonne santé. And And if we want to ask in formal way, then votre, vous santé. votre santé. Votre santé, ça va, monsieur? Madame, votre santé, ça va? So this person would say, oui, oui, ça va bien. Ma santé va bien. You could also say, yeah, my health is going fine. Ma santé va bien. Rather than saying my health is going fine, that's the correct sentence, but people would say je vais bien, right? I'm doing fine, rather than my health is going fine. Even that's correct, that's not incorrect, but people would rather say je vais bien, merci, merci. Voilà. D'accord, merci. Très bien, super. On va continuer. On va continuer, voilà. Très bien. Okay. All right, so there's even when you raise a toast to someone, we say santé. You know, you would say santé, like cheers. The way we say in English cheers when we are raising a toast or we are having a drink together, we say cheers. We say in French santé. Santé. Santé, right? As in, you are raising a toast to everyone's good health. Santé. Okay? That's how you would use it. Okay. Okay, très bien. On va continuer. So, if you remember, we were doing this famous text of Marie. I don't know you got time to read that, to understand that. Adi, Ravindra, Vaibhav, c'est bon? Vous avez compris? Vous avez complété? So, oui. Vaibhav, oui, non. Oui, non. No. No. Pardon, monsieur. No, no, ça n'est pas grave. But see, pull out some time, right? Get some time out for yourself so that you are able to do it. We'll be very quick with this pronunciation and the meaning, right? So let's quickly start. You can put your camera on, Vaibhav. Tu dois mettre ta caméra, s'il te plaît, so that I see you. Voilà. Yes, yes. Très bien. Oui, Ravindra, est-ce que tu peux commencer? Est-ce que tu peux commencer? What does that question mean if I am asking Ravindra? Est-ce que tu peux commencer à lire? Est-ce que tu peux commencer à lire ce texte, s'il te plaît? What am I asking her if I said, est-ce que tu peux commencer à lire ce texte, Ravindra, s'il te plaît? You can start reading the content. Okay. Yeah, Ravindra, what do you translate that in English? Saying, can you start reading the context? Voilà, absolument. So that's correct, Adi and Ravindra. Est-ce que tu peux commencer à lire ce texte, s'il te plaît? So ask is a sure short question, right? I could have said the other way as well, Adi. I could have simply said, tu peux commencer à lire ce texte, s'il te plaît? By taking a tone. Or when you add ask, it's a sure short question becomes, est-ce que tu peux commencer à lire ce texte, s'il te plaît? So can you and not could you. It's not could, it's can. It's a very direct can. So can you start to read this text, please? Right? So how do you respond to that question, Ravindra? By saying, yes, I can.
Oui, je peux Commencer, je peux commencer. je peux commencer lire contexte. Last वाला मुझे समझ नहीं आ रहा ओके, क्या है। ये एस टी पी होता है। I'll write it down for you. STP मतलब सिल तपले, सिल Okay. सिल तपले प्लीज। उसको हम STP बोल देते हैं थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में, सिल तपले, सिल तपले। एंड किसी बड़े को बोलना है या बहुत रिस्पेक्ट है, सिल वू प्ले, तो हम सिल वू प्ले बोलेंगे, SVP, right? सिल वू प्ले, सिल तपले, d'accord? Okay, so how do you respond to that question again? Ravinder, you would say we. Oui, je peux commencer lire contexte. We. Contexte. No, so text. So text. So, okay. So this text. So text means this text. So oui, je peux commencer à lire ce texte. तो सर ये जो सर टेक्स्ट है ये आर दीस टू वर्ड्स और ये साथ में नहीं नहीं, दो शब्द हैं, so and text. इसका मतलब है this text. ये हम बाद में सीखेंगे. We learn it later on. What does that mean? This is adjective demonstrative and this is a noun. This is going to demonstrate. नहीं 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 नहीं, वो सा होता है, ये स है, वो होता है सा, ये है स, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, और ये ऐसा दिखता है, वो सा है, ये स है, राइट? ये स है दिस के हिसाब से, दिस थोड़ा सा याद कर लीजिए एवरीवन. वैभव, आजी एंड रविंद्र एंड तरुण, if you're watching our video, and Deepika, if you're watching this video, so sir is used before masculine singular nouns. ce हम यूज करते हैं, मैं बता ही देता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है. CE, CETTE, CET और CES, बहुत सिंपल है, 1 मिनट लगेगा आपको समझने में. ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, स, सेट, सेट एंड से, हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, स, सेट, सेट और से. ये चारों का मतलब है, इनका मतलब है दिस, और इसका मतलब है दीज, दिस एंड दीज, राइट? और हम कैसे यूज करेंगे वैभव? स हम काम में लेंगे एनीथिंग दैट इज मैस्कुलिन. मैस्कुलिन सिंगुलर के पहले हम यूज करेंगे स, फेमिनिन सिंगुलर के पहले सेट, वॉवल सिंगुलर लेकिन मैस्कुलिन होना चाहिए के पहले सेट, और अंत में प्लूरल के पहले CES, राइट? कुछ उदाहरण लिख देता हूं आपके लिए. हम जानते हैं शब्द को पेन, पेन को बोलते हैं स्टीलो, तो दिस पेन हो जाएगा तो स्टीलो. हमने सीखा है फेमिनिन में हम फ्लावर को जानते हैं, फ्लावर को बोलते हैं फ्लर, तो सेट फ्लर, दिस फ्लावर, दिस फ्लावर, this flower, FLOWER, and then CET. ऐसी चीज रविंद्र जो मैस्कुलिन हो, सिंगुलर हो और वोवल से चालू हो. तो हम एक उदाहरण लेते हैं, होटल. जो होटल होता है वो मैस्कुलिन होता है और वोवल से चालू है, बिकॉज you know Webber, we don't pronounce H, so we end up speaking the O. So cet hotel means this hotel, that is this hotel, which is मैस्कुलिन सिंगुलर वॉवल स्टार्टिंग वाला कंपोनेंट, और अंत में CES. हम कोई भी ऐसी चीज आदि जो प्लूरल होगी, सो दीज, लेट्स से दीज टेबल्स, से ताबल, दीज टेबल्स, दीज टेबल्स. फिर उसमें आप चाहे मैस्कुलाइन लो, फेमिनाइन लो, कि वॉवल वाला लो, इट डजंट मैटर, इट हैज टू बी प्लूरल इन द एंड, राइट? सो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था रविंद्र. स, सेट, सेट से, ये दिस या दीज की तरह इसको बोलना है अंग्रेजी में, दिस या दीज, और निर्भर करेगा इफ दैट थिंग इज मैस्कुलिन तो CE लगाएंगे, वो चीज फेमिनिन है वैभव तो CETTE, सेट लगाएंगे. वो चीज अगर सिंगुलर है, वॉवल से चालू है और मैस्कुलिन है आदि, तो हम CET लगाएंगे. और अंत में यदि वो चीज प्लूरल है और वो फिर मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या वॉवल से चालू है, डजंट मैटर, हम उसके पहले CES लगाएंगे, राइट? ये आपको ध्यान रखना है. ओके, चलिए, सो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक तरुण हैज जस्ट जॉइंड इन. बोंजूर तरुण, como ça va? Ça va, Tarun? Can you hear me, Tarun? All right.
So let him get settled. Meanwhile, is it fine, Tarun? Can you hear me? Tu peux m'entendre? Oui? Oui. Comment Ça ça? va bien? Ça va bien? Yeah, ça va bien, moi aussi. Très bien, super. Alors, Tarun, quelle est ta nationalité? Nationalité indienne. Okay, so the right sentence will be Je suis indien. You remember? Russian. Voilà. Yes. Et quelle est ta profession, Tarun? Quelle est ta profession? Profession architect solutioner. Okay, so you don't have to repeat the word. You simply have to say Je suis architecte. Je suis architecte. I am is going to help you a lot. You don't have to go back to the word like nationality or profession. No, not at all. You could use it if you were to say something of this sort, Ravindra. If you were to say, oh, my profession is blah, blah, blah. Ma profession est, and then you would again go back to the sentence, I am so and so. It's better to go with I am, right? Tarun, that's easier. Rather than going for my nationality is so and so or my profession is so and so, go for je suis. Voila. Okay, so I'll just quickly run through with a little thing that we have just done, Tarun. This is about adjective démonstratif. Les adjectifs démonstratifs. इसका नाम है वैभव demonstrative adjectives. Demonstrate कर रहे हैं ये आदि कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं this that these so this and these. अगर हमें this and these बोलना है so हमको ध्यान रखना है तरुण, we have got 4 options. CE, उसके बाद है हमारे पास CETTE, फिर है CET और अंत में CES. ये 4 तरीके हैं. आप इनसे this या these बता सकते हैं तरुण. CE को पढ़ते हैं so, CE को पढ़ेंगे so, CETT को पढ़ेंगे set, CET को भी पढ़ते हैं set और अंत में CES को पढ़ते हैं say. I think मैंने say लिख दिया, इसको say पढ़ना है. So I'll just remove that एक की मात्रा extra वाली. Yeah, so that's going to be say. So let's quickly check with Ravindra if she could help us to understand what this topic is all about. Yeah, Ravindra, could you help us please? Tu peux nous aider? I'll write that down. Tu peux nous aider? What does that mean? Tu peux nous aider, Ravindra? Tu peux Can nous... you help us? Very good. Can you help us? Very good. Can you help us to understand this topic? Tu peux nous aider? So, in English. I can try. Yeah. Not in French. I can try. Yeah. Okay, so as you said, these are demonstrated adjectives. Right. So CE, we call it or pronounce it as so. Right. So this is used for masculine, Right. and which is this. Hmm. CE double E is this. Yeah. And this is used for feminine. Right. Again, it's this. Hmm. CET is used for masculine, but which is starting from vowel and it should be singular. Absolutely. And it is pronounced as Set. and CE set. Yeah, that's And correct. CES is these, and it can be used for masculine or feminine, and it should be plural. And Absolutely. with the example, Yeah. also masculine, stilo, So, stilo. stilo, step, floor, Oui. and then step, hotel, Voilà. and step, stay, Table. table, C'est table. stay table. Voilà. Perfect. So, Table. perfect. Très bien. Table. C'est table. So, Sir Stilo stands, Tarun, for this pen. Set fleur stands for this flower. Set hotel stands for this hotel. And in the end, c'est table stands for these tables. Got it? So, अगर आपको फ्रेंच में this या that कभी बोलना पड़े, तो आप set और say की आप उसको use करेंगे and then you'd be able to make it. Ça va? C'est bon? Sir, Oui. आपने इसको क्या pronounce किया था ऊपर? तो nu Yeah, so yeah, ये again आप देखिए हमने pouvoir verb सीखा था, if you remember verb, right? याद है आपको? तो tu peux nous aider, so you can help us. You can help us? So you can help us. Okay, चलिए. Ça va, Tarun? Oui, verb.
सॉरी नो नो चलिए। ये इसमें आपने एक बार समझा लेकिन अगेन हाँ बताइए। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं कैन यू हेल्प मी, यस। लेकिन यहाँ पे नू दे दे नू क्यों नहीं है? या सो आप इसके लिए आपको हिंदी में जाना पड़ेगा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सो हिंदी में भी आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को पहले रखते हैं। सो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल सी बात है। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, फ्रेंच का एक कंस्ट्रक्शन है कि आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट को पहले रखना पड़ेगा अगर वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ पे कोई नाम होता वैभव, मान लीजिए मैं रविंद्र को कह रहा था कि रविंद्र कैन यू हेल्प तरुण, तो उस केस में मेरा सेंटेंस तरुण एकदम लास्ट में जाता। कैसे? मैं तब कहता एस्क ट्यूप एदे तरुण, ट्यूप एदे तरुण, तरुण के लिए सिर्फ टी लिख रहा हूं मैं, ट्यूप एदे तरुण। बिकॉज जब कभी वो नाम के फॉर्म में आएगा वैभव, एवरीवन रिमेंबर, देन यू पुट इट इन द एंड, बट वो एक कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा। अभी आप कहोगे व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट, अभी चिंता मत कीजिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट होता है जब आप उस पर्सन का नाम नहीं लेते बट आप उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हो, तो हम उसको उठाकर वी पिक इट अप फ्रॉम देयर तरुण एंड वी प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ब। सो आगे आप सीखोगे कि when Ravinder responds, she would say, yes, I can help him. I can help him. तो him में तरुण की जगह हम le यूज करेंगे, जो हम आगे सीखेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, आपके क्वेश्चन को फिर से रिस्पॉन्ड करने के लिए वैभव, कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, और उनके जो ओरिजिनल नाम होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू वुड गेट टू नो। सो हैड नॉट आई यूज नू, अगर मैंने नू नहीं यूज किया होता तो मैं क्या क्या नाम लेता? मैं कहता रविंद्र ट्यूप एदे वैभव आदि एंड तरुण एमुआ, मतलब इतने नाम लेता मैं, इतने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो कि उसकी बजाय नू इज अ कॉम्प्लीमेंट जो हम आगे लगाते हैं। ये कैसे लगता है, ये कैसे बनता है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। देखो सवा, कैन यू हेल्प मी है तो हाँ तो या बताइए, वेरी गुड, दैट्स अ गुड ट्राई। सो इसको एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ। सो ट्यूप नू, yeah, very good, that's correct. So tyupa zede, if I were to ask Ravindra to help us, I would ask her, Ravindra tyupa zede, and if I were to say Ravindra can you help me, तो उस केस में होगा tyupa m apostrophe ede, tyupa mede, tyupa mede, right? मेदे हमेशा पहले पाया जाएगा, बिकॉज मेदे कोई नाम नहीं है म जो पीछे रखूंगा। अगर मैंने नाम को पीछे रख दिया ना, मान लीजिए वैभव आप ही माँ कह रहे हो कि मेरी मदद कर सकते हो, तो आप अपना नाम नहीं बोलोगे कभी भी। यू वुड नेवर से कैन यू हेल्प वैभव, ऑफ कोर्स यू विल से कैन यू हेल्प मी, सो दिस मी कम्स एज म इन फ्रंट। गॉट इट? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो इफ आपने कंजुगेट किया जो कि ओआई का, इसलिए उसको आपने कमेंट कर दिया, राइट? नहीं नहीं, ओआई रहेगा, ये मुआ नहीं है। ये आप बात ध्यान रखिएगा एवरीवन, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम अभी चर्चा चालू कर दी हमने, ये कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं इनकी शक्ल असलियत में कैसे दिखती है, ये ऐसे दिखते हैं, म त नु वु ल ला ले एल पॉस्ट, ये है वो कॉम्प्लीमेंट। ये मुआ तुआ के परिवार से नहीं आए हैं वैभव, राइट एवरीवन? आई एम श्योर आपको मुआ तुआ थोड़ा बहुत आइडिया है। मुआ मतलब मी, तुआ मतलब यू, राइट? वो अलग फैमिली है। आपके लिए मैं सिर्फ लिख देता हूँ उस फैमिली को, कंफ्यूज मत होइएगा। उस फैमिली को इसके बाजू में लिख रहा हूँ। वो फैमिली होती है मुआ तुआ लुई, दूसरा हुआ एसक्यूजन हुआ बोलते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इट विल बी लुई एल ओ एन एल। वो फैमिली अलग चलती है, आप लिख लीजिए एक बार, जब हम इसको ऑफिशियली पढ़ेंगे आदि, देन आई गेट बैक टू दैट लिस्ट। जो आप कह रहे हो वैभव, वो मुआ है वहां वाला जो दूसरी लिस्ट का है, और मैंने जहाँ पे म लगाया है ये पहली लिस्ट का लगाया है, ये है वो म। अब आप कहोगे सर हमें तो कैसे पता चल सकता है, अंत में कितने सारे मुआ म होंगे, हाउ वुड वी गेट टू नो व्हाट इज व्हाट? सो डोंट वरी, वील डू इट पीसफुली, आराम से चलेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कौन सी लिस्ट से क्या आया है। इनका जो नाम है, अब सिंस आपने वो टॉपिक छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा मैं इसको आगे ले लेता हूँ। जो म त नु वु ल ला ले एल एपोस्ट्रोफ रविंद्र, इस लिस्ट को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा इस टर्म को होल्ड कीजिएगा तरुण, इस पे ज्यादा नहीं हम चलेंगे आज, लेकिन नाम याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं COD, कॉम्प्लीमेंट्स d'objets
डायरेक्ट। आसान शब्दों में ये जो लिस्ट है म त नु वु ल ला ले एल एपोस्ट्रोफ की आदि, these are all the complements for those objects जिनका नेचर डायरेक्ट था। इसकी स्पेलिंग में आप पता कर सकते हैं, इसके नाम में पता कर सकते हैं तरुण। these are the complements of which kind of object which is direct। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसको हम कैसे काम में लेते हैं, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना सा याद कीजिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की लिस्ट में से आप उठाते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए काम में लिया जाता है। और आगे जो लिस्ट थी जो अभी हमने बात की वो है प्रोनोटोनिक। इसकी इस लिस्ट का नाम होता है ले प्रोनोटोनिक। प्रोनोटोनिक, ये जो प्रोनोटोनिक है ये स्ट्रेस देने के लिए काम में लिए जाते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे? आपने कहा मैंने कहा आदि से, आदि तुआ तुआ तू comprends, तुआ, पहले मैंने आदि को आइडेंटिफाई किया, तुआ तू comprends, तो आदि ने फिर खुद को आइडेंटिफाई किया, monsieur moi, monsieur moi, मैं, oui oui toi, ah oui moi je comprends, मैं समझ रहा हूं। सो ये हम वैभव ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेस देने के लिए काम में लिए जाते हैं। स्ट्रेस, अगर आपके दिमाग में कभी भी आए कि ये म क्या मुआ है, कभी नहीं हो सकता। मुआ नेवर चेंजेस इट्स स्पेलिंग, मुआ इज ऑलवेज मुआ। मुआ कभी भी एम अपोस्ट्रोफ नहीं बनेगा। सो मुआ मुआ ही बन के रहेगा, तुआ तुआ ही रहेगा, नु वु लुई एल एल ये सब इसी फॉर्म में रहते हैं। दे नेवर चेंज देमसेल्व्स, विल सी इट, डोंट वरी। तो पहली चीज हमने क्या देखी, ये जो प्रोनोटोनिक है ये स्ट्रेस देने के लिए काम में लिए जाते हैं। तरुण, आपको हमेशा स्ट्रेस जब देना है, मैं इंडियन हूं, मुआ je suis indien, तो जो पहले मुआ बोला हमने वो स्ट्रेस देने के लिए, वो यहां से आया। C'est clair? Ça va? तरुण, ça va? ओके। और एक और काम में आता है इसका आदि, एक और काम है इसका with prepositions, with prepositions, preposition। और prepositions के साथ भी रविंद्र हम ये मुआतुआ वाला परिवार उठाएंगे। कैसे? आपको याद है बहुत पहले एक बार आपने कहा था रविंद्र, डू यू वांट टू ईट विद मी, मुझे याद सारा एक सेंटेंस आपने बनाया था, यू वांट टू ईट विद मी। तो आपको याद होगा आपने बोला था, मैं यहां लिखता हूं, tu veux manger avec moi। आई डोंट नो अगर आपको याद है, या हमने आपके साथ बनाया था सेंटेंस, याद आ रहा है आपको? tu veux manger avec moi। तो इस केस में ध्यान रखिएगा वैभव, जो आवेक है ना वो विद है, वो एक प्रीपोजिशन है। तो जो प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा तरुण, with, without, for, at, ये सारे प्रीपोजिशंस में साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, मुआ तुआ नु वु लुई एल एल, ये लगाते हैं, ये नहीं लगाते, ये लगाते हैं। तो जो प्रोनोटोनिक है आदि, वो हमारे को टू प्लेसेस पे काम आता है। वन इज व्हेन यू स्ट्रेस on that person to identify who the person is, and second when you're using it with prepositions, only then, right? Okay, जैसे एक आपको याद है एक पूर था, एक preposition था पूर। what is पूर? does anyone know what is पूर? POUR, for, पूर मतलब for, के लिए, पूर, right? POUR, पूर मतलब for, for। कोई बता सकता है how does someone say, oh ये जो पेन है, this pen, this is for you, this pen it's for you, how do you say that in French? Anyone? This pen, it is for you. Raise your hand. Oh la la, you'll have to raise your hand. Now everyone knows the answer, so raise your hand, that virtual hand, if you have it. Okay, chaliye, so you'll have to, yeah, so you have to raise your hand. Tarun is raising his hand. Yeah, Tarun, बताइए. I'm sure आप ये कहना चाह रहे हो, ये वाला? So stilo. बताइए, सेपुर या एनीवन? Voila, se pour toi, exactly. So ce stylo c'est pour toi, what Adi also said was correct, right? Ce stylo c'est pour toi, ये होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है इसमें वैभव, कि अगर preposition आ गया है, पूर है मतलब for है, with है, without है, वो हम बहुत एक लंबी 20-25 prepositions है इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे, behind, above, below, ये सारे preposition जो positions बताते हैं उनके साथ हमेशा हम प्रोनोटोनिक काम में लेंगे। ठीक है? तो अगर आपको कहना है ये तुम्हारे लिए है, सस्तिलो से पुरतुआ, ये पेन तुम्हारे लिए है, तो उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, रविंद्र, ये मेरे लिए, हाउ डज दिस पर्सन से, रविंद्र, इट्स फॉर मी।
it's c'est pour moi. Voilà, c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. तो उस केस में moi toi में बातें चलेगी ना कि je तो उड़ गया. je तो वाक्य बनाने के काम में आता है. Je m'appelle Jay, je suis indien. वो अलग चीज है. You got it right? वो subject pronouns है. वो subject pronouns से sentences बनते हैं तरुण, right? और जहां तक बात थी म तो नु वो ल ला ले एल पॉसिबल, इसको थोड़ा सा होल्ड पे डालिए फिलहाल. इसका अपन जिक्र करेंगे. बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है. बट 1 मिनट और लूंगा इसके ऊपर. ये कब काम में आएगा? जब आपको सेंटेंसेस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्स डालने हैं. द वे तरुण सेड, द वे वैभव सेड, कैन यू हेल्प मी? तो उस केस के अंदर हमें कहना पड़ेगा ट्यूप मेदे. और ये जो म आया है वैभव, अब आपको मुझे लगता है क्लियर है कि ये यहां से आया है और वो एम ई बन के आया था. बट व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज फॉलोड बाय अ वोवल. तो हम उसको एम Yes. के ई का ई ड्रॉप कर देते हैं तरुण, राइट? तो मेदे बन गया. मेदे. मेदे मीन्स हेल्प मी. सो what if Adi, could you help us with that question? Let's check with Vaibhav. Vaibhav, if you could help us with that question. What if Ravindra told you, yes, I can help you informally? I can help you. So what would Ravindra say if she were to tell this to you? Vaibhav, yes, I can help you informally में. Oui. Oui, je peux हाँ. Thank हाँ, तुआ तो होगा ही नहीं. ते दे. Je peux t'aider. Je peux t'aider. You understand that, Ravindra Sava? Je peux t'aider. I can help you. हमने क्या किया? हमने त उठाया. हाँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ. तो तुम्हारी का टी लगाया, फिर ई को ड्रॉप कर दिया. Je peux t'aider. Right? तो तुआ नहीं आएगा. तुआ doesn't play any role over here. तुआ की तो कोई लेना देना ही नहीं है. Je peux t'aider. So आप इसके साथ सारे कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं. एक छोटी सी एक्टिविटी करके हम आगे बढ़ जाएंगे. क्या एक्टिविटी है इसमें? आप क्या क्या कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं तरुण? आप इस ट्यूब ए दे, तुम मदद कर सकते हो. किस किस की मदद कर सकते हो? उन सभी लोगों को हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं. मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद ट्यूब में दे, ट्यूब ते दे, मतलब तुम तुम्हारी मदद कर सकते हो. यू कैन हेल्प योरसेल्फ, राइट? ट्यूब तेदे भी हो सकता है, विच मेक सेंस. अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर है तो आपका ये बनता है. ट्यूब तेदे, यू कैन हेल्प योरसेल्फ. फिर उसमें से नू लगा देते हैं तो इसका हो जाएगा रविंद्र, यू कैन हेल्प अस, तुम हमारी मदद कर सकते हो. लेकिन ट्यू के साथ वो जाना बड़ा अटपटा हो जाएगा आदि. यू कैन नेवर से यू कैन हेल्प, तुम आपकी मदद कर सकते हो. तुम आपकी मदद कर, डजंट मेक सेंस इन हिंदी ईदर, राइट? सो वो के साथ नहीं बैठेगा. एल ई बॉय के लिए बैठ जाएगा. हेल्प हिम, राइट रविंदर? किसी थर्ड पर्सन की मदद करनी है, वो मैस्कुलिन है. बॉय के लिए ल बन जाएगा. लेकिन आपने देखा कि एल ई की जगह हम क्या कर देंगे? एल अपोस्ट्रोफी, राइट? क्योंकि वो ए दे वॉवल से चालू है. और इसी प्रकार से जो एल ए हो जाएगा वैभव, गर्ल की हेल्प करनी है तो भी वो एल ए की जगह एल अपोस्ट्रोफ हो जाएगा. और एक अंत में मुझे बताइए, हु कैन से यू कैन हेल्प देम. ये देम के लिए क्या करेंगे हम रविंद्र? व्हाट वुड यू पुट फॉर देम? Voilà, very good. Les de de. L-E-S. Very good. Les de de. Les de de. Les de de. Les ze. I don't know what am I writing, but ठीक है. Les de. Les de. Right? Les de. चुप les de. किसी ने पूछा रविंद्र आपसे, कैन यू हेल्प देम? क्या तुम उनकी सहायता कर सकती हो? उनकी सहायता कर सकती हो. चुप les de. उन लोगों की. Les de. सर एक करेगा. हाँ बताइए वैभव. सर ये स्पेस किलो, तो दिस किलो, या फिर CST का दिस पीस है, राइट? या से इट इज. दिस किलो, दिस इज फॉर यू. इससे हाँ ये भी लिख सकते हैं, EST भी लिख सकते हैं, राइट? हाँ मतलब आप ये कह रहे हो कि हम इसमें सीधे हमने ये वापस से क्यों इंसर्ट किया? हम ये कहते हैं स स्टीलो ए पूर्तवा. स स्टीलो ए पूर्तवा बिल्कुल बोल सकते हैं. स स्टीलो ए पूर्तवा. बट फ्रेंच लोगों की एक बड़ी आदत होती है, वो उस वस्तु का पहले नाम लेंगे, फिर उसका सर्वनाम बनाएंगे, उसको स करके बोलते हैं, फिर उसका वाक्य बनाते हैं. नो दैट्स अ वेरी फ्रेंच स्टाइल ऑफ थिंग. सो मैं आपको चाहे ये भी सिखा दूं, आप 6 महीने में जब फ्रेंच बोले और सीख जाएंगे तो आप यही बोलेंगे अंत में. सो व्हाई नॉट डू व्हाट फ्रेंच पीपल डू? दैट्स व्हाट दे डू. Yeah, I'm not aware, so I'm asking. No, that's okay. That's perfect question. But I'm telling you that with passage of time, you would do the same thing.
So I'm telling you how French people say. They would always use that noun. They would make a pronoun out of it, and then they would do it. How do they say? They say, वो नहीं आया क्या मोहन. कैसे बोलते हो? Il n'est pas venu मोहन. वो ये नहीं बोलते मोहन नहीं आया क्या. They would say वो नहीं आया क्या मोहन. That's how they say. So you would get to see that वो पहले pronoun use करते हैं, फिर अंत में उसका noun अलग से बोलता है कि किसकी बात हो रही. So that's a very French style, and since you're into that ambiance, I'm sure you would see that as well. C'est clair? Ça va? Just one question. Yeah, Tarun. What is the difference, Seth or Eth? Which this one and this one? Yes. ये जो say है तरुण, इसका मतलब है it is, this is. इस say का मतलब होता है अंग्रेजी में this is और it is. तो आप say जब लिखते हो तो this is या it is, और est का मतलब है is. तो वैभव का क्वेश्चन था कि हम this pen it is for you या this is for you क्यों बोल रहे हैं, हम सीधे क्यों नहीं बोल देते this pen is for you. तो उस केस में स सीलो ए पूर्तवा बोलेंगे, which is correct, वो गलत नहीं है. और ऊपर वाला स्टाइल है बड़ा फ्रेंच स्टाइल, this pen it is for you और this is for you. से पूर्तवा. And Wait. to pay, how do you say, please help yourself. Can you help me? This one? Tu peux m'aider. No. Which one? Please help yourself. Please help yourself. Please help yourself. Please help yourself is not a sentence, it is imperative form. वो हमने अभी सीखा नहीं है. अभी हमने कहीं पे भी please help yourself नहीं बोला था, लेकिन वो इनमें से नहीं है, वो imperative form है. वो आप ऑर्डर दे रहे हो, help yourself. अब help yourself के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं तरुण. एक होता है कि कोई आपके साथ, आपने किसी को डिनर पे लंच पे बुलाया, आप कह रहे हो प्लीज सर्व योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ, तो वहां पे एक कॉन्टेक्स्ट अलग होगा. आप वहां पे नहीं कहेंगे अपनी मदद स्वयं कीजिए, वो नहीं, वो आप कहना चाह रहे प्लीज कैरी ऑन, हैव इट, खा लीजिए, तो उसमें हो जाएगा आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, लाइक servez-vous. So, my context is the same. This one? Somebody's guest is there. या उस केस में आप उनको बोलोगे servez-vous, आप अपने आप को सर्व कीजिए, आप वेट मत कीजिए, servez-vous. So that's true. See, in English you say help yourself, be comfortable, help yourself, but French में आप वो help वाला verb काम में नहीं लेंगे, वो गलत हो जाएगा. वो ऐसा हो जाएगा हिंदी में तरुण, जैसा आप किसी को कह रहे हो लंच पे अपनी मदद खुद कीजिए, बड़ा कितना अर्थहीन बात है. servez-vous s'il vous plaît, servez-vous बोलेंगे आप, और अंत में s'il vous plaît लगाएंगे थोड़ा पोलाइट होने के लिए, s'il vous plaît, which means help yourself, as in please carry on, लीजिए खाना लीजिए, servez-vous s'il vous plaît. और कोई मित्र है तो sers-toi s'il te plaît, sers-toi. अगर इनफॉर्मल कनेक्ट है तो s'il te plaît. So this is, Yeah, this meaning is please serve yourself. yeah, please serve yourself, as in help yourself, serve yourself. Because you'll have to get me the context if you have a very specific question as to what is the context wherein you would want to say that, right? So मैं आपको उस verb का बताऊंगा, because English में इतनी freedom है हमारे पास, because English में there are multiple ways to say the same thing, but in French and Hindi you have a specific verb for a specific situation, so accordingly you would do, right? Ça va? C'est clair, Tarun? Oui, d'accord, très bien. So servez-vous, sers-toi. If you have these kind of questions, you can always drop them in WhatsApp. I'll get back to you on those questions. If you feel ki, can I use this in this context? Can I use it that way? I'll tell you, would it be used or not? Accordingly, you can change it. Okay. I'll be sending you this document, so don't worry. Even if you are missing out on writing something, you'll have it completely. Chaliye. So we were on this text. Let's quickly read this text and get the meaning as well, and then we'll move ahead with another text. Chaliye, so we'll quickly start with Adi. The first, I'll quickly give you this is Adi, this is Vaibhav, then these small ones I'll give you Ravindra, and then this is for Tarun. Chaliye, इतना पढ़िए, फिर एक और text पढ़ाऊंगा आप लोगों से. अच्छे से पढ़ना एकदम बिल्कुल. Please ensure that you make your best effort to read it in the nicest way. Chaliye, Adi. ये तो मैरी तो नहीं होगा, मारी होगा ना. हाँ, of course. Marie, मारी अभी dans un petit village
à la campagne, chaque matin, Oui. elle ouvre हम्म les fenêtres, नहीं, ये क्या हुआ? Fenêtre, fenêtre, Fenêtres, oui, pour laisser, pour laisser pour laisser hmm, entre entrer, les, entrer, yeah, les fouets. l'air frais, l'air L'air frais, voilà. Carry on. Ensuite, Hmm, elle prépare oui, son petit déjeuner petit déjeuner. et boit Hmm, un café hmm. en regarde le jardin. En regardant Oh, sorry. En regardant le jardin. le jardin, le बोलना है आपको आदि le Le- jardin. le- Okay, carry on. Last sentence. Après avoir mangé, Hmm, elle lave hmm. les assiettes. इसको जोड़ दीजिए les assiettes. Les assiettes. Les assiettes, oui. Et organiser Organiser बोलेंगे आदि या organise बोलेंगे? Organise. Organise. sa journée. Très bien, perfect. Very nice try. Bravo, wonderful. I'll just quickly read the whole thing for everyone. It goes this way. Marie habite dans un petit village. Dans un के अंदर liaison करना है. Liaison की आदत हमें अभी से डालनी होगी. Tarun, Vaibhav, everyone, Adi, Ravindra, Deepika, so that you know when you listen to French people or the French speaking people, you know अच्छा ये dans un मतलब ये था. मुझे कुछ और ही दिख रहा था dans un. पता नहीं क्या था. अच्छा ये था क्या dans un. And another thing very important for everyone, whatever you read, I mean, of course, when you read it, you have to have the text in front of your eyes. But whatever you are hearing, whatever you're listening to, ensure that you have the text of the same. So ऐसा अभी कुछ भी मत सुने जिसका आपके पास text ना हो. अगर सुनते हैं तो कोई बात नहीं, but ensure कि इसकी transcription हमेशा आपको मिले. Whatever you are listening, have its transcription in front of your eyes so that you can see, okay, this was being said. अच्छा, dans un था. Okay, ये है dans un. Right? That's very important. Otherwise, you'll always struggle कि dans un क्या था. या इस तरीके के और combinations क्या थे. So it goes this way. Marie habite dans un petit village à la campagne. Chaque matin, elle ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Ensuite, elle prépare son petit déjeuner et boit un café en regardant le jardin. Après avoir, that's what Adi did. He connected the S of après with A of avoir, and the sound became après avoir mangé. After having eaten, खाने के बाद. ये बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन है. देखने के बाद, बोलने के बाद, सुनने के बाद, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, या मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो आप कहेंगे après avoir, and the third form of the verb. Did we already touch past tense a little bit other day? Ravindra, याद है आपको? वैभव, हमने past tense touch किया था हल्का सा? Not? We did not? Okay. So après avoir mangé, after having eaten, elle lave les assiettes. She washes. I don't know if I was going on the pronunciation first. Après avoir mangé, elle lave les assiettes et organise sa journée. Right? So the meaning I'll quickly let you know so that if you have already done it, so it will be great. You would get to know the right one. If not, then you get to hear it for the first time. Marie lives in a small village at the countryside. Every morning she opens the windows for letting the fresh air enter. For letting the fresh air enter. Afterwards, ये बड़ा अच्छा शब्द है. आप जब अपना डेली रूटीन बताएंगे या आप किसी को तरुण बताते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद मैं वहां गया, so you would always use ensuite afterwards ensuite, right? उसके बाद she prepares her breakfast and drinks a coffee while watching, en regardant, while watching, टीवी देखते हुए. इसको बोलते हैं gérondif. What does gérondif stand for, Ravindra? It means when two actions happen at the same time. टीवी देखते हुए मैं चाय पीती हूँ, तो चाय पीने के एक्शन के साथ en regardant हम on लगाएंगे और ant लगा के उस वर्ब को तैयार करेंगे. ये मैं बाद में सिखाऊंगा. Just to give you an idea, it is called gérondif in French, which means two actions that happen at the same time. So while watching the garden, वो अपना garden देखते हुए कॉफी पीती है. After having eaten, she washes the dishes, she does the dishes and organizes her day. और अपना दिन पूरा प्लान करती है वो. चलिए वैभव पढ़िए आप. Marie travaille dans une ferme. Right. Elle nourrit les animaux et nettoie les stables. Les étables. इसको थोड़ा सा और ध्यान देना. Les étables.
लेज़े ताबला voilà. parfois हम्म elle aide एदे नहीं है, waza एदे नहीं है, verb el aid, el aid, aid द पे रुकना है. यहाँ पे वो लिया तो नहीं होगा आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं el aid, el aid बोल सकते हैं, लेकिन हम el aid भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है. ये लिएजन जो है वो Okay. फैकल्टेटिव है, ऑप्शनल है. el aid, el aid. okay elle aide तो waza हम्म. a plante planter, en, plante voilà. plon des légumes हम्म. dans la dans la dans le jardin Voilà, dans le jardin. elle aime हम्म. beaucoup हम्म. travail dehors verbe travail या travailler? हाँ travailler travailler पूरा वर्ब है, er में खत्म हो रहा है पूरा वर्ब. तरुण याद है आपको, er वाले verbs को हम a में खत्म करते थे. travailler, chanter, manger, तो travailler होगा पूरा. ये आगे travailler dehors dehors, dehors, h को नहीं पढ़ेंगे और de को dehors. dehors car elle adore la nature nature nature, nature. nature हम्म. et le calme et le calme, le calme. le calme वेरी गुड. चलिए, अच्छा पढ़ा आपने काफी. शुरुआत के सारे वर्ड्स बड़े करेक्ट थे. Marie travaille dans une ferme, elle nourrit les animaux et nettoie les étables. Parfois, elle aide son voisin à planter des légumes dans le jardin. Elle aime beaucoup travailler dehors car elle adore la nature et le calme. किसी को किसी भी वर्ड पे अगर डाउट है, तरुण आप ध्यान रख के पूछ सकते हैं वापस से. रविंद्र, आदि, वैभव, एनी वर्ड दैट बॉदर्स यू, आई कैन रीड इट फॉर यू. सर ये ऊपर वाला जो है ले एनिमोस ले निटॉय नेटवा, 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 ने और त्वा, ओ आई का उआ हो गया, नेटवा. एंड उसके आगे ले which one, this one, les étables. इससे सॉरी पीछे वाला अच्छा पीछे आ रहा. एल नूरी या एल और नूरी. ओ यू का साउंड याद है आपको? ओ यू इज ऊ, ऊ है तो नूरी, नूरी, right? El Nouri. Right. So I'll get you the meaning quickly. Mary works in a farm. वो एक खेत पे काम करती है, एक फार्म पे काम करती है. और ये ध्यान रखिएगा, अगर यून आ गया है तो फेमिनिन है. ये हम बाद में सीखेंगे, मैंने अभी तक आपको आर्टिकल सिखाए नहीं है. बट फेमिनिन आर्टिकल होता है यून और मैस्कुलिन आर्टिकल होता है एक. ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है. यानी जो गांव होता है वो मैस्कुलिन होता है और जो खेत होता है फ्रेंच भाषा में वो फेमिनिन होता है, फेर्म. फेम. ये चीजें हमें धीरे धीरे सीखनी है तरुण. हर चीज का जेंडर हमें पता होना चाहिए कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तभी हम सारी चीजें सही रख पाएंगे. हमें एडजेक्टिव्स भी अकॉर्डिंगली काम में लेने हैं कि बड़ा होगा खेत या बड़ी होगा, क्योंकि फ्रेंच भाषा में खेत जो होता है फेर्म वो फेमिनिन है, तो फिर हमें फेमिनिन विशेषण काम में लेना होगा. सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. इफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट नाउन इज फेमिनिन, एवरीथिंग गोज इन फेमिनिन ऑर्डर एंड वाइस वर्सा. ओके, सो या सॉरी No, no, tell me. ये जो है यू एन ई, सो हम इसको यू प्रोनाउंस करेंगे और प्रोनाउंस करेंगे? नहीं, यूएनई को पढ़ते हैं यून, यून, यू यून. हाँ, यू वो एक के लिए है, फेमिनिन के लिए. और यूएन को पढ़ते हैं वो एक के लिए है, मैस्कुलिन के लिए. तो इस वाले को फिर हम पढ़ेंगे मारी प्रोवाइड डॉन वेरी गुड. डॉन्ज्यून, वंडरफुल. डॉन्ज्यून जुड़ जाएगा. डॉन्ज्यून, डॉन्ज्यून, राइट? ओके. So Marie travaille dans une ferme. Marie works in a farm. Elle nourrit les animaux et nettoie les étables. She nourishes, यानी खाना देती है, वो भोजन देती है एनिमल्स को. और नेटवा करती है यानी क्लीन करती है स्टेबल्स को, जहाँ पे पशु रहते हैं उन स्टेबल्स को क्लीन करती है वो. Parfois, sometimes she helps her neighbor. वो अपने पड़ोसी की भी मदद करती है क्या करने में? A planter, to plant some vegetables in the garden. गार्डन में सब्जियां लगवाने में उसको हेल्प करती है, राइट? She likes a lot. She likes a lot. उसे बहुत पसंद है क्या? काम करना. She likes a lot to work. Dehors is outside, बाहर. उसे बाहर काम करना बहुत पसंद है. Because she adores, उसको बहुत पसंद है क्या? La nature, उसको नेचर पसंद है. Et le calme, उसको शांति बहुत पसंद है. Ça va? C'est clair? ये जो कार है, so it's not like गाड़ी वाला कार.
The car is because. हाँ यहाँ पे बिकॉज है, हाँ गाड़ी वाला कार नहीं है, गाड़ी वाला जो होता है उसको वॉच्यूर बोलते हैं हम, गाड़ी का जो कार है हमारा अंग्रेजी का कार, उसको वॉच्यूर बोलते हैं, वॉच्यूर, यून वॉच्यूर, वॉच्यूर इज कार। और ये जो फ्रेंच में जो कार शब्द है तरुण, CAR, वो है बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि ये है बिकॉज। सॉरी सर, या ये फर्म का मतलब क्लोज भी होता है राइट? किसका मतलब, फैम का मतलब, फर्म, फर्म नहीं पाफवा, नहीं, फर्म फर्म फर्स्ट आपने जो कहा डॉन यू फर्म, फैर्म, फैर्म, फर्म फैर्म, हाँ फैर्म का मतलब क्या कह रहे हैं आप? क्लोज, वो जैसे यहाँ पे शॉप क्लोज, हाँ हाँ उसका साउंड वो होता है फैर्मे, वो फैर्मे होता है, मैं आपको बताता हूँ, वो होता है FER, मैं यहाँ लिखता हूँ FERMER, फैर्मे का मतलब होता है क्लोज, बंद, राइट, फैर्मे। और अगर कोई दुकान बंद होगी ना तो वो होता है उवेर या फैर्मे, सो वो बाहर लिखा रहता है, दुकानों के बाहर वो आप देखते हैं वो उवेर और फैर्मे, सो OUVERT, तो उवेर खुली हुई है दुकान, बंद है तो फैर्मे। आप देखिएगा वैभव, ई के ऊपर एक एक्सेंट होगा, हाँ जी। होता है, वरना तो वो खेत बन जाएगा, वो दुकान खेत बन जाएगी अगर ई पे एक्सेंट नहीं लगाया तो फैर्मे मतलब क्लोज्ड, क्लोज्ड पास्ट टेंस है वो, क्लोज्ड एंड ओपन, उवेर, उवेर। थोड़ा कंफ्यूजन हो, ई के ऊपर अपोस्ट्रोफ जो है वो हाँ clear हो वो कई बार क्या करते हैं, मैंने देखा है कैपिटल लेटर्स जब काम में लेते हैं ना वैभव, तो वो हटा देते हैं, कैपिटल लेटर्स में जनरली ई पे हटा देते हैं वो, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये ई पे एक्सेंट मान रहे हैं, कैपिटल्स में जनरली हटा देते हैं, बिकॉज एक जमाने में जब टाइपराइटर से लिखते थे तो टाइपराइटर्स के ऊपर एक्सेंट्स लगते नहीं थे कैपिटल लेटर्स पे, तो उस आज के 150-200 साल पुरानी चीज को अभी भी स्टाइल के हिसाब से, क्लासिक अप्रोच के हिसाब से मेंटेन करते हैं, तो वो कैपिटल लेटर्स जब लिखते हैं ना FERME तो उस पे नहीं लगाते वो, बट आइडियली उनको लगाना चाहिए, वरना कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो आप जो कह रहे हैं वो So फैक्ट में close होता है, वाले को, या टेल मी so रविंद्र। close वाले को will pronounce as फर्मे, फैक्मे, ऊपर वाला जो फार्म है इसको फॉर्म, फैर्म, फैर्म पे रुकना है, फैर्म, फर्म, और ये फैर्मे, फर्मे, या फैर्मे, राइट। ये ई पे जो ये मात्रा है इसको एक ही मात्रा पढ़ेंगे रविंद्र, ए फॉर एप्पल वाला, तो फैर्मे। अरे हाँ जी। चलिए, तरुण सभा, c'est clair pour toi तरुण? C'est clair. C'est clair. So I asked the question to Tarun. Tarun, c'est clair pour toi? What does that question mean, Tarun, if I'm asking this to you? C'est clair pour toi? It isn't clear for you. Voila. And how do you respond if you were to say, yes, it's clear to me? Oui, c'est clair pour? Vous c'est clair pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi. For me, it's clear, right? अंग्रेजी में शायद हम बोलते हैं, is it clear to you? Clear to लगाते हैं, फ्रेंच भाषा में pour लगाते हैं, pour moi, pour toi, right? इस प्रकार से। चलिए. So the meaning I've told you about the second paragraph. We'll move to the third one. Yeah, Ravindra, पढ़िए, 2 lines आपके लिए. Just one Yeah, thing. Tarun. Is it possible for you to like the whole paragraph you have like you have told in very quickly, you have read the whole paragraph in French. Okay, if you can read it in a slow. I'll do that. So later when we watch this video. Yes. Not now. Maybe, not now. No. I got it. Don't worry. I'll do that. I'll do that. Yeah. I'll do it in a slow way. Don't worry. In a slow way rather. But also the previous videos that I've sent you, you have to pull out some time, Tarun, and everyone else to watch those videos. क्योंकि उसमें हमने किया था. So I'll do it for you. Don't worry. But then always pull out some time to watch the previously recorded videos. You would absolutely pick something or the other from there. So don't worry, right? अभी मैं आपके लिए धीरे-धीरे पढ़ूंगा इसको. So don't worry. चलिए, let's listen, Ravindra. This one, the third para. L'après-midi, Marie retrouve ses amis Ses amis. café du village. Ses amis. Ses amis. Very good. Ses amis au café du village. Du village. Du village. Il discute partage. Partage. Very good. No, partage. Partager
G नहीं, partage. Partage. Hmm. Partage. Hmm. They stories, इसको हाँ, इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना है आपको. Des histoires. Des histoires. Very good. Après, elles retournent chez elles pour arroser Hmm. les fleurs. Fleur. Elle range la maison. Perfect, very good, wonderful try, bravo, बहुत हद तक आपके pronunciation ठीक थे. So I'll read it out for you. L'après-midi, Marie retrouve ses amis au café du village. Ils discutent, rient et partagent des histoires. Après, elle retourne chez elle, इसमें जुड़ जाएगा chez elle, pour arroser les fleurs et ranger la maison. Which in English goes this way. Afternoon, Marie finds her friends at the cafe of the village. जो गांव का जो कैफे है वहां पे वो अपने दोस्तों से मिलती है. They discuss, वो सब बातें करते हैं. री का मतलब है they laugh, वो हंसते हैं. ए partage, शेयर करते हैं कुछ कहानियां, कुछ अपनी अपनी बातें बताते हैं. Après, she returns to her place for watering the flowers and arranging the house. Clear है? Right? पानी देने को बोलते हैं arroser. Arroser les fleurs. फूलों में पानी देना, arroser les fleurs. Ça va? Okay. चलिए, तरुण आप पढ़िए लास्ट की 2 लाइंस. You'll have to unmute Tarun once. You able to unmute yourself, Tarun? Yeah. Yeah, okay. Le soir, Le soir, elle dit Eldine from Eldine procuré इसको पढ़िए, इसको फिर से सुनिए, इसको सुनिए वापस से एक बार और फिर पढ़िए. आप पढ़िए इसको तरुण. Tranquillement, tranquillement. Tranquillement. L'histoire, elle dîne tranquillement et regarde un film. Un film, right? Avant Avant de dormir, dormir, elle lit. souvent Elle lit souvent elle lit souvent un livre livre pour ses détendre. Very good. Finalement, Tarun, finalement. Finalement, elle Éteint la lumière et paisiblement. Yeah. paisiblement. Okay, I'll read it out for you once and just watch the pronunciation. Listen to it carefully, Tarun and everyone else. Le soir, elle dîne tranquillement et regarde un film. Avant de dormir, ये डी को द पढ़ेंगे, दे नहीं पढ़ेंगे, right? द, softly. Avant de dormir, elle lit souvent un livre pour se détendre. Finalement, elle éteint la lumière et dort paisiblement. जहां पे भी MENT आया है तरुण एंड एवरीवन एल्स, जो एडवर्ब्स हैं, जो अंग्रेजी में होता है ना सॉफ्टली, क्वाइटली, ट्रैंक्विली, पीसफुली, तो जो सब में ली लगता है वो सारे फ्रेंच में मेंट में बताए जाते हैं लार्जली. सो tranquillement, मेंट को पढ़ेंगे मॉ, paisiblement, पीसफुली. आगे एक और शब्द है finalement, फाइनली. अरे तो ये सब मॉ में खत्म होगी.
चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं. So in the evening time she Shall takes. I- Yeah, you want to try? Shall I? Yeah. चलिए बताइए बताइए. Tell me. Not the exact meaning. कोई- not the कोई exact बात नहीं, meaning, बताइए. हाँ. but- Give a try. Give a Yeah, try. Yeah. Yeah, tell us. Yeah. Approximate meaning. बताइए. Yeah, go ahead. Yeah. So the first sentence is she will do the dinner. Yeah, she takes the dinner. In evening. Sorry. Yeah. Sorry. Viswa is in evening. In the evening, yeah. She do the dinner. Right. And she watches Rigade. She watches one movie. That's correct. Yeah. Okay. And Avant de dormir. Anyone? What is dormir? Dormir. Anyone? I think it is. या sleep. सोने से पहले. avant de का मतलब होता है के पहले. किसके पहले आदि? सोने के पहले, सोने से पहले. हिंदी में से बोलते हैं avant de dormir, सोने से पहले. What does she do, Tarun? What does she do before sleeping? Elle lit souvent un livre. Livre याद है? LIVRE. Yeah, in the book. Yeah, she reads the book. She reads the book. She reads the book. Yeah, okay, and also one more thing. Yeah. I don't know what's that. She reads the book and she does. Yeah. Yeah. Pour se And détendre. final move is finally. Yeah, finally, what she does? Lumière. Finally. Lumière. What can lumière mean? Anyone? Lumière का मतलब क्या हो सकता है? Lumière is the light. She turns the light off. Éteindre. Éteindre होता है उसको बंद करना. She turns the light off and what she does? Dort. सो जाती है वो and she sleeps peacefully. Peacefully she sleeps. Right? Ça va, Tarun? C'est clair? Yeah. Paisiblement. Yeah. Peacefully. Okay, there's one word that I'll translate for you. Pour se détendre. Détendre का मतलब है to relax. वो relax करने के लिए सोने से पहले किताब पढ़ती है. She to relax. Right? Détendre. Tendre. So, sir, Yeah. Tell me, Ravindra. sorry. No, tell me, मैं please. बस words को catch कर हाँ, रही हाँ. थी. ये जो words जैसे tendre हो गया, हाँ. एत्य जो आप éteint. सोने बंद करना. हाँ, éteint. So ये words मतलब normally अगर मुझे बोलना है light बंद करो, so I can use this. Absolutely. आपको क्या करना पड़ेगा रविंद्र? आपको इस वर्ब का मेन वर्ब ढूंढना है पहले. ये तो आपने कम से कम सही किया कि आपने सही वर्ब ढूंढा. कई बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति गलती से बंद करना, उसके दिमाग में हिंदी चल रही है, उसको लगे लाइट बंद करो, तो उसको याद आएगा अच्छा वैभव ने बताया था फेरमे होता है, तो वो कहीं गलती से फेरमे नहीं यूज कर ले, है ना, लाइट बंद कर दो, तो वो गलत हो जाएगा. तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में से क्या उठाना है एवरीवन कि अच्छा लाइट बंद करने के लिए एतें जैसी कोई वर्ब है उसका मेन वर्ब ढूंढता हूं या ढूंढती हूं और उसका व्यक्ति के अनुसार कि तुम लाइट बंद करो, तो फिर tu के साथ कॉन्जुगेशन करके आपको उसको बोलना पड़ेगा. Tu éteins la lumière. Tu éteins la lumière. Yes, exactly. और ये जो détendre भी I can use. Yes. Relax हो जाओ. Relax. हाँ. Détendre. हाँ, अब देखिए ये बड़ा इतना सिंपल नहीं है. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा रविंद्र एंड एवरीवन. कैसे? यहाँ पे आपको शब्द मिल गया, लाइक रविंद्र वांट्स टू टेल हर किड्स की रिलैक्स योरसेल्फ, आराम करो अब, है ना, स्कूल से आए हो, व्हाटएवर द थिंग इज. तो वर्ब तो हमें पता है se détendre. Se détendre इज टू रिलैक्स oneself. लेकिन उसको काम में लेना होगा तब जब आप सीख जाएंगे वो वाला टॉपिक जिसमें आपको ये सिखाऊंगा कि इंपेरेटिव कैसे होता है, जो हमने अभी देखा था जब तरुण ने बोला था सर्व योरसेल्फ. आप क्या सर्व योरसेल्फ हमने एक देखा था, तब हमने आपको दिखाया था servez-vous, मैंने आपके लिए लिखा था servez-vous. तो ये यहाँ तक पहुंचना ऐसे नहीं होगा, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इस वाले सेशन को भी अटेंड करना पड़ेगा जहाँ पे मैं आपको इंपेरेटिव सिखाऊंगा. तो अगर आपका जो फॉर्मेशन है se détendre, जो se détendre है उसका जो फॉर्म है वो कैसे बदल जाएगा मैं लिख देता हूँ आपके लिए. अगर आपको किड्स को कहना है रिलैक्स योरसेल्फ, तो आप उनको क्या बोलेंगे? détendez-vous. détendez-vous, ये हमें उनको कहना पड़ेगा. तो मतलब वहां तक जाना पड़ेगा हमें. इसके लिए हमें किस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी रविंद्र? हमें इंपेरेटिव्स सीखने होंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा. तो ये अच्छी बात है. दिस इज गुड थिंग वैभव दैट यू कैच होल्ड ऑफ द राइट वर्ब. वर्ब सही पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिंदी इंग्लिश से आप गलत वर्ब की तरफ जा सकते हो. जैसे फेर में एक बड़ा अच्छा उदाहरण था,
तो आपको सही वर्ब उठाना है, फिर आपको देखना मुझे कैसे काम मिला है, डू आई नीड टू मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट और एम आई गिविंग एन ऑर्डर, दिस इज एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पोलाइट फॉर्म टू से समथिंग, तो ये वाला होगा। सो détendez-vous। Okay, I thought वो attend वाले में इसको भी हम ऐसे यूज कर लेंगे because I'm using this word a lot. Okay. Attend करके Yeah. wait. हाँ नहीं, आप यूज कर सकते हैं। सुनिए, जो आतौंद्र है ना, अब मैं 1 मिनट और लूंगा। आतौंद्र का मतलब होता है टू वेट, प्रतीक्षा करना, राइट। आप जब उसमें किसी को कहते हो ना रविंद्र की वेट कर, तो आप बोलते हो आतौं। आप किसी बड़े व्यक्ति को कहते हो ना प्रतीक्षा कीजिए, तो आप बोलते हो आतौंदे। और आप बोलते हो चलो प्रतीक्षा करते हैं, तो आप बोलोगे आतौंदों। ये 3 होते हैं इंपेरेटिव फॉर्म्स, मैंने आपके लिए ऑलरेडी दिखा दिए, राइट वैभव। इफ यू आर टेलिंग योर फ्रेंड वेट वेट वेट, रुक रुक रुक, तो आप बोलोगे आतों आतों आतों। रुकिए, आतोंदे। चलो रुकते हैं, लेट्स वेट, आतोंदों। ये इंपेरेटिव फॉर्म्स मैं हैं। तो सिर्फ attend ही यूज कर रही आपसे भी, क्योंकि आपको इंग्लिश जैसा लगा ना, वेट वेट वेट, क्योंकि अंग्रेजी में सिर्फ एक वेट है, हिंदी में रुक, रुकिए, चलो रुकते हैं, रुक, रुकिए, चलो रुकते हैं, दैट्स हाउ यू डू। सो ये खैर इतना मतलब एकदम से मैं नहीं सिखा रहा, ये आपको मैं टॉपिक करवाऊंगा, तब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इट्स जस्ट टू लेट यू नो दैट राइट नाउ व्हाट यू ऑल कुड डू इज यू कैन कैच होल्ड ऑफ द राइट वर्ब। सही वर्ब पकड़ में आ जाए वो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद उसको किस फॉर्म में काम में लेना है, क्या वाक्य बना रहे हैं हम या इंपेरेटिव का ऑर्डर दे रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे एज पर द नीड। Okay, sir. C'est clair? Ça va? Adi, Vaibhav, Tarun? ठीक है। Oui? D'accord. ठीक है। Très bien. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा टेक्स्ट था, इसका मीनिंग देख लेते हैं। या वैभव, तरुण wants to say something. तरुण बताइए। फाइनल हुआ Fin. जो वर्ब करना है, लाइक हाँ, इसका जो वर्ब, that is जो इसका वर्ब है एतन, it's to turn off. या टू टर्न ऑफ, टू पुट आउट, टू या टू टर्न ऑफ, टू पुट ऑफ, टू पुट आउट, éteindre। éteindre जो मुख्य क्रिया है वो है éteindre। éteindre। But firm is sorry, not firm. Firme is to क्लोज, close. हाँ, ferme क्लोज होता है। वो होता है कोई खुली हुई चीज है तरुण, उसको बंद करना, कमरा है उसको बंद करना, किताब है उसको बंद करना, एनीथिंग दैट इज ओपन, खुली हुई है उसको बंद करना इज ferme। बट लाइट बंद करना हिंदी में बंद करना होता है, बट अंग्रेजी में टू स्विच ऑफ, Switch off. ऑफ करना है ना, तो आप समझते हैं। हिंदी में हम बंद करना बोलते हैं, हम ऑफ करना बोलने लगे हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके, बट लाइट बंद कर दे तो ferme नहीं यूज कर दे हम गलती से, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे चलिए, परफेक्ट। वैभव, यू वांट टू से समथिंग? वैभव बताइए। या सर ये जो री के पाता जी था, हाँ, ये वाला री और पाता जे यहाँ पे, हाँ। सॉरी सर, वेरी वेरी क्वेश्चन नहीं, नो नो नो, प्लीज टेल मी। इसको भी री बोलते हैं, राइट? तो हाँ, री, हाँ। right? हाँ, तो जो चावल होता है उसको बोलते हैं री, RIZ, री। चावल जो हम खाते हैं ना उसको बोलते हैं री, RIZ। तो आपका क्या प्रश्न है, यू बताइए वैभव। तो इसमें मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है? बिल्कुल, ये भी री है, री, और ये भी री है, री। ये यहाँ पे चावल है और यहाँ पे हंसना है। अब हंसते हुए चावल खाना है, डिफरेंट स्टोरी। बताइए। तो अब कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। वो अब देखिए, वो अब इल री, एल के इल है ना, इल, वो अपने दोस्तों के साथ में इल आ गया, तो इल री, तो कहीं पे भी मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। एटलीस्ट शुरुआत में हो सकता है कि चावल क्यों बोला, लेकिन उसके पहले आएगा अच्छा इल बोला था, तो इल री यानी कोई और कोई बात है, री वो चावल वाला नहीं, कुछ बात है। तो उस बात को ढूंढने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये RIENT है। इसलिए मैंने आपको कहा वैभव एंड एवरीवन कि जो आप सुनते हैं उसको देखना जरूरी है। जब आप सुनते हैं तब तो ये चावल सुनाई देता है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो ये कहते हैं अच्छा ये तो RIENT है, ये तो RIZ नहीं है, यानी ये कुछ और है, और ये ENT में खत्म हो रहा है। रविंद्र, इसका मतलब ये कोई वर्ब है, क्योंकि इसका डूअर ILS है, तो हमने देखा था कि प्लूरल में ENT बनता है, यानी कोई क्रिया है, ये कोई वर्ब है। फिर मैं दिमाग लगाता हूँ वैभव और ये रीर वर्ब निकल के आता है, RIRE, रीर मींस टू लाफ। सर लाभ को शेयर कर रहे हैं, राइट? हाँ,
नहीं 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 नहीं, वो गप्पे मारते हैं, डिस्कस करते हैं, हंसते हैं और बांटते हैं अपनी कहानियां, एक दूसरे से कहानियां बांटते हैं वो, है ना, दे आर लाफिंग। शेयर तो स्टोरीज कर रहे हैं, बांटते तो अपनी कहानियां एक दूसरे से, राइट? Ça va, c'est clair? Oui? Très bien. Okay, pas de souci. I'll just read this once for all of you, the meaning. In the evening, she dines peacefully and watches a film. Before sleeping, सोने से पहले, she reads, अब जो LIT है, ली, इसका मतलब बेड भी होता है, जो बिस्तर होता है, बेड, उसको भी ली बोलते हैं हम, रविंद्र, LIT, ली, वो नाउन है, वो संज्ञा है, राइट? और जो लीर क्रिया होती है वैभव, पढ़ने की क्रिया LIR, उसका कॉन्जुगेशन भी LIT होता है L के साथ। तो देखिए बहुत सारे शब्द जो होंगे आपको कंफ्यूज करेंगे रविंद्र, की बेड बोला कि पढ़ना बोला, तो पढ़ना बोला तो LIT वो लीर वर्ब का कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, और बिस्तर बोला, बेड बोला तो भी वो LIT ली होता है, वो संज्ञा, दैट्स अ नाउन। तो ये शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे, बट जस्ट होल्ड ऑन टू योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? Okay, so she reads often a book for relaxing herself. वो अपने आप को आराम देने के लिए अंत में किताब पढ़ती है, और फाइनली वो एतें करती है, यानी बंद कर देती है लाइट को, ल्यूमियर को, और डॉर्मीर वर्ब से है डॉग, एंड शी स्लीप्स पीसफुली, और वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सो जाती है। C'est clair? Ça va? रविंद्र, आदि, c'est bon? वैभव, तरुण, चलिए मैं एक बार आपके लिए धीरे धीरे पढ़ देता हूँ, बहुत ही ज्यादा क्लमजी हो गया पेज, बट आप ट्राई कीजिएगा। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन लेते हैं और उससे मैं आपको, या येलो लेते हैं, मैं आपको चलाता हूँ। So everyone please read with me in your mind and just see that are you able to do the same or not. It goes this way. Marie habite dans un petit village à la campagne. Just a second. Then it goes this way. Chaque matin, आपको याद है ना तरुण, ये शब्द आपके साथ सीखा था, Saint-Martin, एक जगह का नाम आपने लिया था, माtin. Elle ouvre les fenêtres, वो खिड़कियां खोलती है, pour laisser पढ़ना उसको, और कुछ नहीं पढ़ना, laisser entrer l'air frais, ताजा हवा को अंदर आने देती है. Ensuite, elle prépare son petit déjeuner, and then she prepares her breakfast et boit un café en regardant le jardin, and then she drinks a coffee while watching the garden. Garden को देखते हुए वो कॉफी पीती है. Après avoir mangé, मतलब खाने के पश्चात, खाने के बाद, elle lave les assiettes, she washes the plates, वो प्लेट साफ करती है. ए organize sa journée and organizes her day, और अपना पूरा दिन प्लान करती है, आज ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, राइट? ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजे, इसकी जो क्रिया है वो है ऑर्गेनाइजे. आई एम श्योर दैट आप सभी को पता है ER एंडिंग वर्ब्स की कॉन्जुगेशन कैसे होती है. ER को हटाते हैं हम रविंद्र, ES, ONS, EZ और ENT लगाते हैं. J'organise, tu organises, il organise, elle organise, on organise, nous organisons, vous organisez, और अंत में ils organisent और elles organisent ENT के साथ. याद है तरुण आपको conjugation? थोड़ा सा देखिएगा तरुण, conjugation, right? Yes. चलिए, great. No, but go back to the videos, repeat, revise, I'm sure it will help you. आगे, Marie travaille dans une ferme, वो एक खेत में काम करती है. Elle nourrit les animaux, she nourishes or feeds or gives food to animals. Et nettoie les étables, and she cleans, nettoyer होता है साफ करना. यहाँ से आप सारी क्रियाएं उठाएंगे, जो रविंद्र ने बात बोली है उसको मैं वैसे भी कहने वाला था कि आप यहाँ से सारी क्रियाओं को उठाएंगे. आदि, you'll pick all the verbs, you'll write them. How? Nettoyer, to clean. Nourrir, to nourish. Préparer, to prepare. Ouvrir, to open. You have to pick these verbs. ये होमवर्क है आप सबका कल की क्लास के लिए. What you have to do? आपको verbs ढूंढनी है रविंद्र इनमें, और मेन verb ढूंढना है. असली में verb कैसे दिखती है, that's more important, because यहाँ पे किस फॉर्म में, conjugated form में. Got it? So, and she cleans the stables. Parfois, elle aide, she helps son voisin à planter des légumes dans le jardin. To plant some vegetables in the garden.
Elle aime beaucoup travailler dehors. She likes a lot to work outside. Car elle adore la nature et le calme. Because she likes or she adores the nature and the calmness. Shanti. L'après-midi, दोपहर में, Marie retrouve ses amis. वो अपने दोस्तों से मिलती है. कहाँ पे? Au café du village. At the cafe of the village. At the cafe of the village. ये जो O है इसमें क्या छुपा हुआ है आदि? At the. Du में क्या छुपा हुआ है रविंद्र? Of the. At the cafe of the village. ये अभी बहुत ज्यादा कंटेंट लग रहा होगा आपको. रिलैक्स होके चलिए. ज्यादा मत परेशान होइएगा कि हम कैसे याद करेंगे, कहाँ ओ लगाएं, कहाँ ड्यू लगाएं. डोंट वरी एट ऑल. आराम आराम से चलिए. बस याद रखिए कि अच्छा ये ओ मतलब एट द है, ये ड्यू मतलब ऑफ द है. इसी प्रकार से आला कॉम्पान्य था, यहाँ पे भी एट द कंट्री साइड था. तो आपके दिमाग में अगर प्रश्न आता है तरुण की आला क्यों यहाँ पे, ए यू क्यों यहाँ पे, उसको लिखिए, होल्ड पे रखिए. मैं उसका जवाब दूंगा जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब. अगर बीच में पूछना हो कभी तो बीच में भी पूछ सकते हैं आप. ओके. Ils discutent, rient et partagent des histoires. Après, elle retourne chez elle pour arroser les fleurs et ranger la maison. They discuss, laugh, and share some stories. After she returns at her place for watering the flowers and arranging the house. Le soir, elle dîne tranquillement et regarde un film. In the evening, she takes dinner peacefully, tranquilly, and watches a film. Avant de dormir, soने से पहले, elle lit souvent un livre pour se détendre. She reads often a book for relaxing herself. Finally, finalement, elle éteint la lumière. She turns the light off et dort paisiblement and sleeps peacefully. Ça va, Tarun? C'est clair? Ravindra, c'est bon? Vaibhav? Adi, ça va? Okay. Read it. You might be understanding it, but read it again. One. होमवर्क सुन लीजिए because we still have 10 minutes, but होमवर्क पहले बता रहा हूँ मैं आपको. होमवर्क क्या है आपका? कल आप मुझे इसको पढ़ के सुनाएंगे बहुत मधुर फ्रेंच में. पहला काम, राइट? हमेशा अपने आप को कहिए कि अगले दिन मेरे को और बेहतर बोलना है. मेरे पास ये 5 शब्द गड़बड़ थे. I'll work on them and I'll try to impress people who will listen to me in French. Make an effort. Make an effort, knowing effort. Know it and do it. One. Second, इन सभी के अंदर आपको verbs ढूंढने हैं. उदाहरण के लिए आपको क्या करना है? You'll have to highlight the verbs. For example, यहाँ पे हो गया abit, यहाँ पे हो गया ouvre. बहुत सारे verbs हैं. आपको इनको ढूंढना है रविंद्र, और इनका मेन वर्ब मुझे बताना है. आबीते. यू रिमेंबर आबीते आदि? HABITER. फिर ऊपर के अंदर क्या हो जाएगा वर्ब? एनी गेसेस? एनीवन? उवरीर. उवरीर, ये IR एंडिंग है. तो आपको क्या करना है? गूगल पे जाके ढूंढना है रविंद्र, उव्र का मेन वर्ब क्या होता है. टाइप कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको. उवरीर. फिर अपनी लिस्ट में लिखिए कि उवरीर मतलब टू ओपन, राइट? इसी प्रकार से लेसे हो गया आपके पास. सो यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ लॉट ऑफ वर्ब्स. लेसे टू लेट, entrer टू एंटर, प्रिपेयर टू प्रिपेयर. बुआ आ गया, बुआर वर्ब से टू ड्रिंक, कॉफी पीना, चाय पीना, राइट? लावे वॉश करना, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करना, travailler काम करना, nourrir नरिश करना, nettoyer साफ करना. सो ये सब आप लिखेंगे. बिलीव मी, इतने सारे वर्ब्स मिल जाएंगे आपको कि आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस के अंदर आपको यूज करने के लिए सारे वर्ब्स हैं यहाँ पे. धीरे धीरे तक. And then slowly and gradually you will also get to know their conjugations. For example, जब आप उवरीर का करेंगे conjugation, तो ये IR ending है, but ये exception है. क्यों exception है? क्योंकि ये IR की तरह नहीं चलता, ये ER की तरह चलता है. Again, बहुत सारे exceptions आएंगे. तो j'ouvre, मैं खोलता हूँ. tu ouvres, तुम खोलते हो. il ouvre, elle ouvre, on ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent OUVRENT और elles ouvrent OUVRENT. तो ये हमें सीखना है. सो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वर्ब्स लिख के सबको कॉन्जुगेशन करना, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा. बट धीरे धीरे इनको करिए, देखिए, इंटरनेट पे इनका मीनिंग ढूंढिए, इंटरनेट पे इनके आप थर्ड फॉर्म्स, आई एम सॉरी नॉट थर्ड फॉर्म्स, इनका कॉन्जुगेशन देखिए. अच्छा, ये उवरीर तो बड़ा अजीब सा चला, क्योंकि सर ने तो बताया था IR एंडिंग है, तो इसका तो SST, SSONS, SSEZ और SSENT होना चाहिए था. ये ऐसे कैसे हो गया? तो दिमाग लगाया, फिर ढूंढा, अच्छा ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन पे स्टार लगाना है, राइट? अभी चीजें करेंगे ना तो आपको दिमाग में रहेगी चीजें और आप गलतियां नहीं करेंगे. So that was the little homework you all have to do. You will have to tomorrow read this whole passage for me in French 1.
सेकंड यू हैव टू गेट मी द वर्ब्स। मैं आपसे पूछूंगा हाईलाइट करके, जैसे मैंने कहा कि ओके आप बताइए तरुण डिस्क्यूट का वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे डिस्क्यूटे। मैं पूछूंगा आपसे वैभव बताइए री का वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे रीर, RIRE, रीर, टू लाफ। पार्टाज इसका वर्ब पार्टाजे, पार्टाज, राइट। तो ये वर्ब्स ढूंढने हैं, राइट आदि, ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए। और उसके बाद आपको ये टेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए बहुत धीमे धीमे से। इस टेक्स्ट को कल आप पढ़ेंगे मेरे लिए। आई थिंक लार्जली इट इज द सेम, बट ये सेम फॉर्मेट पे चल रहा है, वर्ड्स वही हैं जो आप जानते हैं। मैं एक बार पढ़ूंगा धीमे धीमे इसको आपके लिए। टुमारो, demain, vous allez, you are going to, vous allez lire, lire is to read, vous allez lire ce texte et vous allez changer en anglais. Vous allez changer. What is changer? Change, yeah. Vous allez transformer. What is transformer? ट्रांसफॉर्म। देखिए सारे अंग्रेजी के शब्द आपको इतने अच्छे से फ्रेंच में समझ में आ रहे हैं। changer, transformer en anglais. You are going to transform the text in English, right? So ये आपका होमवर्क होगा। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए टेक्स्ट। आई थिंक बहुत यहाँ पे लोग सिर्फ ट्रेडक्शन बहुत यूज करते हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप समझते नहीं, तो मैं पहले अंग्रेजी के जो शब्द हैं जो फ्रेंच में मिलते जुलते हैं उनको काम में लूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। changer, transformer, मैंने नहीं कहा traduire। traduire is the word जो आप कह रहे हैं ना, ट्रांसलेट करना। अच्छा, वो पता नहीं था मुझे। हाँ, तो वो इसलिए तो नहीं पता था क्योंकि मैं वो काम में, तो traduire वो वर्ब है। आप जो कह रहे हैं वो ट्रांसलेट करने के लिए जो वर्ब है वो है traduisez en anglais, exactly, translate in English, traduisez en anglais, वो traduisez, तो वो थोड़ा सा बॉदर करता है, तो मैंने changer, transformer इस प्रकार से चेंज किया। चलिए अब बहुत आराम से रिलैक्स होके अब मैं कह सकता हूँ जो रविंद्र ने कहा था ना कि ये कहना चाह रहे थे बच्चों को आराम करो, तो मैं आपसे भी कहता हूँ détendez-vous। What is that? détendez-vous मतलब रिलैक्स योरसेल्फ, आराम कीजिए, détendez-vous। और इसको सुनिए आराम से, और फिर कल मुझे आप पढ़ के सुनाएंगे। तो कल काफी सारा होमवर्क है, वो टेक्स्ट को पढ़ना है, पहले वाले टेक्स्ट को, उसके वर्ब्स बताने हैं, इस टेक्स्ट को पढ़ना है और इसका मीनिंग बताना है कल मुझे इंग्लिश में। तो सुनिए इस टेक्स्ट का प्रोनाउंसिएशन। ओके, आई एम श्योर आप अपने दिमाग में पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक सेम लगेगा। Pierre habite dans un petit village. Chaque matin, il se lève tôt pour aller travailler à la ferme. Il nourrit les animaux, arrose les plantes et récolte les fruits. Il aime passer du temps à l'extérieur et écouter les oiseaux chanter. À midi, Pierre prend une pause pour manger un sandwich et boire de l'eau. Après le déjeuner, il retourne au travail, il plante de nouveaux légumes et nettoie les outils de jardinage. Le soir, il rentre chez lui pour préparer le dîner. Il cuisine des légumes frais et les partage avec sa famille. Après le dîner, Pierre se détend et regarde un film. Avant d'aller dormir, il lit souvent un livre pour se relaxer. Pierre adore sa vie simple à la campagne et apprécie chaque moment de tranquillité. बताइए कोई भी ऐसा शब्द रविंद्र, आदि, वैभव, तरुण जो आपको लगा कि ये तो हमें आज तक समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आई एम श्योर आपको सारे शब्द समझ में आए होंगे largely. Any word that bothered you, Ravindra? No, none. Bravo. See, I mean, your brain has already accepted कि ये सारे ऐसे हैं और इनका साउंड आपको समझ में आ गया. Adi, ça va? C'était clair pour toi? Oui. Vaibhav, Tarun. D'accord? So your brain has to accept this sound first. धीरे धीरे क्या होगा, मैं टेक्स्ट को नहीं भी दिखा के बोलूंगा तब भी आपके ब्रेन को वो वर्ड्स दिखने चाहिए. You should come to that level wherein if someone is talking to you in French, you should see ये क्या बोल रहा है, वो शब्द आपकी आंखों के सामने आने चाहिए. Only then will you be able to understand what the person is saying. Otherwise, it's all some other language. Okay, I'll just read the whole thing bit faster for you. एक बार तो सुनिएगा. Pierre habite dans un petit village. Chaque matin, il se lève tôt pour aller travailler à la ferme. Il nourrit les animaux, arrose les plantes et récolte les fruits.
Il aime passer du temps à l'extérieur et écouter les oiseaux chanter. À midi, Pierre prend une pause pour manger un sandwich et boire de l'eau. Après le déjeuner, il retourne au travail, il plante de nouveaux légumes et nettoie les outils de jardinage. Le soir, il rentre chez lui pour préparer le dîner. Il cuisine des légumes frais et les partage avec sa famille. Après le dîner, Pierre se détend et regarde un film. Avant d'aller dormir, il lit souvent un livre pour se relaxer. Pierre adore sa vie simple à la campagne et apprécie chaque moment de tranquillité. अभी भी ठीक ही था कुछ हद तक, राइट? सो धीरे धीरे हमें स्पीड भी पकड़नी है. मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से स्पीड पकड़नी है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली. हम किस स्पीड पे बोलें, दैट डिपेंड्स ऑन अस. आदि, आई कैन स्पीक लाइक दिस: bonjour, je m'appelle Adi, j'habite à Jaipur, j'aime beaucoup ma ville, c'est super. That's perfectly fine. You can speak at that speed. That's absolutely okay. But how the other person speaks, we cannot control that. हमें उसको तो सुनना समझना पड़ेगा. So हमें हमारी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सुनने के लिए, समझने के लिए. If you don't want to speak fast, that's perfectly okay. There's no problem about it. But you should be able to understand what others are saying. When you go to French, of course, you people are into France, so you know when you go to the restaurant, you go to the boulangerie, you go to the supermarché, how they respond to you, you have to understand that. Ça va? Ravindra, c'est clair? Vaibhav, Tarun, Adi, ça va? Okay, great. Is that homework okay, or should I add some more to it? नहीं बात बहुत हो गई सर. यहाँ तो आप बहुत क्विकली आप जवाब दे सकते हैं. चलिए, but on a very lighter note, but still a very sincere note, आप रेगुलरली काम करते चलिए. जितना भी मैं काम दे रहा हूँ उसको करिए. कुछ काम छूट जाता है तो घबराइए मत, उसको वीडियो सुन के बनाइए. अपनी नोटबुक अच्छी से तैयार कीजिए. बिलीव मी, ये नोटबुक आपके लिए एक ट्रेजर की तरह काम करेगी. आप इसको जब रेफर करेंगे, जब आप फर्राटेदार फ्रेंच बोलना चालू कर देंगे, तब आपको ये बहुत याद आएगी टेक्स्ट बुक, ये अपनी नोटबुक. तो प्लीज इस पे काम कीजिए, इसको लिखिए, बनाइए अपने सारे नोट्स. और आसपास में जो भी आप देख रहे हैं उसमें फ्रेंच अगर काम में ली जाती है और आपको डाउट है, फोटो खींचिए, मुझसे पूछिए, अपनी आवाज रिकॉर्ड करिए. कोई डाउट है आपको पढ़ते समय, आपको डाउट आया है तरुण, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजिए. सर मैं कोई समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, स्क्रीनशॉट भेजिए. आई विल हेल्प यू देयर. हमें वीकेंड टू वीकेंड वेट करने की जरूरत नहीं है. वीकेंड टू वीकेंड तो हमारी क्लास की कंडीशनिंग ऐसी है कि हमारा सेटअप ऐसा है कि हम वीकेंड टू वीकेंड पढ़ रहे हैं, पर हम बीच के 5 दिन भी पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मेहनत कर रहे हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं. आई एम रेडी टू हेल्प यू फॉर दैट. चला? Okay, so with that, we are wrapping the session up for today. Since you don't have any more questions, we'll catch up tomorrow at the same time. Je vous souhaite bonne journée et à demain. Merci. Bonne journée, à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. À demain.